Okay beta, so we have homogeneous differential equation. Okay, and we had seen that how can we find the solution of homogeneous differential equation. क्या चाहिए आपको? You need two solutions and then you need to check linearly independent or not. So to find the solution of homogeneous differential equation, we had seen first method was, can you tell me the name? या रॉन्स्कियन. वैसे आप उससे नहीं निकालोगे, दैट वाज जस्ट द बेसिस आई टोल्ड यू. रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से निकालोगे हमेशा आप, ठीक है. तो रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज जो मैंने इसमें बताए थे. एंड द सेकंड वन विच वी वर डूइंग वाज when you have constant coefficients. Do you remember? So if you have constant coefficients, so this is what we had done in the last class. Okay, so now today we will be going a step further. When you don't have constant coefficients but your equation is of one particular type, then you can convert it into equation with constant coefficient by a substitution. So that is what we are discussing today. So that is called Cauchy's differential equation. Just a minute. So we are going to discuss Cauchy's differential equation, which is not with constant coefficients, but it is of the form that you can convert it into constant coefficients, right? So this is called third type, you will say Cauchy-Euler equation, differential equation, right? So what is this equation? Here you have a naught x square y double dash, or I'll write d2y by dx2 plus a1 x dy by dx plus a2y is equal to 0. Okay, again we are talking about homogeneous differential equation. Here you see a naught is a constant but x square is multiplied. Yes beta, please keep on coming. A1 is a constant, x is multiplied. So this is not an equation with constant coefficients, but इसका special type क्या है कि first derivative के साथ x multiplied है and second derivative के साथ x square multiplied है, right? In this equation, if you substitute, make a substitution, e raised to power z is equal to x. You are introducing one new independent variable. ये याद रखना है. I will just tell you how this substitution will reduce it to equation with constant coefficients. So whenever you have this equation where second derivative is multiplied with x square, first derivative is multiplied with x, and y का coefficient है वो constant है, then you can always make this substitution, right? So let us see. This substitution is actually क्या है? Z is equal to log x, है ना? I can write it, e raised to power z is equal to x is same as z is equal to log x. Now see what will happen. So what is dy by dx? In this case, we can write dy by dx as dy by dz into dz by dx. Can I write like this? What is dz by dx? dz by dx is 1 by x. So from here, this is 1 by x dy by dz. So it means that x dy by dx is equal to dy by dz. Okay, is that thing clear? So it means that this thing here, this fellow here will be replaced by dy by dz. Okay, so आपका x खत्म हो गया. Can you see x is finished? उसका constant coefficient बन गया उस वाले इस वाली टर्म का. Any doubts? Now let us see d2y by dx2. This step is clear to everybody? बेटा अभी जो लोग आए ना, हमने थर्ड चीज शुरू की है. कल हमने क्लास में डिस्कस क्या किया था? इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. ठीक है, आज हम नेक्स्ट स्टेप है कॉची-आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन. इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं होते, बट सेकंड डेरिवेटिव के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x मल्टीप्लाइड होता है. सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड कॉची-आइलर इक्वेशन. इसमें हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन करते हैं, e raised to power z is equal to x. ये वाली सब्स्टिट्यूशन करने से ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. ओके बेटा,
Clear? So here you see x dy by dx is equal to dy by dz. Now compute d2y by dx2. What is that? That is dy by dx of dy by dx. Right? So what is the value of dy by dx? Here, this is dy by dx of 1 by x dy by dz. Right? Now differentiate it. Use product rule. So first differentiate this. What you will get? Minus 1 by x square dy by dz as such. Right? Now you differentiate this. So plus 1 by x as such dy by dx of dy by dz. Is this thing clear beta? Is this thing clear beta? मैंने product rule use किया है. Now what I will do? This is equal to minus 1 by x square. Last x, ये visible है बेटा? Last table. Okay. Plus 1 by x. I will write it as dy dz of dy by dz into dz by dx. Is that okay? Okay. So this whole quantities are d2y by dx2. So what is this dz by dx? देखिए बेटा dy by dx of this quantity है ना, मैंने dy by dz कर दिया इस quantity का, साथ में dz by dx कर दिया ना. What you want to find the change rate of change of this quantity with respect to z. You want to see rate of change of this quantity with respect to x. तो मैंने क्या किया? Rate of change of this quantity with respect to z into rate of change of z with respect to x. Fine. Now what is dz by dx? This quantity here is 1 by x. Fine. समझ आ रहा है बेटा आप दोनों? So this is minus 1 by x square dy by dx. Sorry, dy by dz था ना बेटा ये ना. Z plus 1 by x square d2y by dz2. Fine. So यहाँ से x square उधर ले जाओ. So your x square d2y by dx2 will be replaced by d2y by dz2 minus dy by dz. देखो x square कंज्यूम होके फाइनली जो कोफिशिएंट्स बने हैं वो कांस्टेंट है ना. क्लियर? तो आपने डायरेक्टली याद करना है कि अगर ये वाली सब्स्टिट्यूशन आप करते हो x is equal to e raised to power z, this is your substitution, then you have to remember that x dy by dx की जगह पे आप dy by dz लिखोगे और x square d2y by dx2 की जगह पे आप d2y by dz2 minus dy by dz लिखोगे. Okay, this will reduce your equation to constant coefficient and you can solve it. Yes बेटा? Yes. कहाँ पे? Okay. Just note down. You should understand why dy by dx into x is dy by dz, and then x square d2y by dz2 is also x square d2y by dx2 is second derivative with respect to z minus first derivative with respect to z. So we'll quickly do one problem. सबको क्लियर है बेटा ये चीज? आपको बेटा अभी क्वेश्चन कराऊंगी तो इट विल बी मोर क्लियर. चले आगे. स्टिल लाइट. ओके लिख लो बेटा. Okay, so do this problem. We have to find the general solution of x square y double dash minus 3xy dash plus 4y equals to 0. Okay, so अभी आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो there are the coefficients are not constant, right? But with y you have nothing. With y dash you have x raised to power 1 and with y double dash you have x square. So this is Cauchy-Euler equation. Is that okay?
So what substitution you will make? So you'll write since it is Cauchy-Euler, put x is equal to e raised power z, right? And then x dy by dx will be your dy by dz, and x square d2y by dx2 will be d2y by dz2 minus dy by dz. डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर आपको नहीं याद है यू कैन डिराइव, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप इसको याद ही रखो. देन योर इक्वेशन बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, बताइए बेटा. यहां पे क्या आ जाएगा इसकी जगह पे, d2y by dz2 माइनस dy by dz माइनस 3xy डैश की जगह पे dy by dz प्लस 4y इक्वल्स टू 0. जस्ट क्लियर बेटा? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? Now, is it equation with constant coefficients? Yes. So your equation is d2y by dz2 minus 4 dy by dz plus 4y equals to 0. So what is the corresponding auxiliary equation? M square minus 4m plus 4. Yes, beta? Yes, yes, please. So this is m minus 2 whole square equals to 0. So m is equal to 2 and 2. Which case is this? Roots are real and equal. Can you tell me the solution? यहाँ पे x आएगा कि z? इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है ना बेटा? ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे? z. तो z आएगा, ये वाली गलती नहीं करनी. इनटू e raised power 2z. Now you will put e raised power z is equal to x. So your y becomes c1 plus c2. What is the value of z? ln x e raised to power 2z, that will be x square. So this is your solution. Is this in clear beta? So make sure, because आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन के सोल्यूशन के बाद z की टर्म्स में लिखोगे, फिर आप रिप्लेस करोगे अपना e raised power x is equal to z. Yes, yes beta. I have already uploaded all the previous also. Okay. So this one also I'll upload. Yeah, sure beta. समझ आ रहा है बेटा सबको? सम थोड़ा सा सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स. आई डोंट नो व्हाई. तो इसलिए मैं इसके क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करा रही, आप खुद प्रैक्टिस करना बेटा प्लीज. ठीक है. मे बी इन द एंड वी विल हैव 1-2 लेक्चर्स जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. बट अब हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा? हाँ ठीक है, तब सारे करवा दूंगी मैं. ठीक है. बट अभी क्या है कि अदरवाइज क्या होगा कि बाद में फिर मैं फटाफट कराऊंगी, आपको समझ नहीं आएगा. अभी आई विल रिस्ट्रिक्ट टू 1 क्वेश्चन फॉर ईच टाइप. ठीक. नहीं बेटा, अभी सेशनल का कुछ ऐसे टेंटेटिव डेट हमने डिसाइड नहीं किया है. ठीक है. बट ऑलरेडी यू नो द डेट्स फॉर योर रिटन टेस्ट, राइट? है ना, वो आपको पता है ना. तो उससे पहले ही होगा. हाँ जी, सेशनल 1 होगा 5 नंबर का बस. ठीक है. मैंने बताया था ना बेटा लास्ट क्लास में, डिफरेंशियल इक्वेशन, लैपलेस एंड फूरियर सारा. हाँ ओके बेटा. सो लेट अस गो अहेड. सो ये कॉशी-आइलर है, सबको समझ में आ गया? एंड देयर इज वन मोर फॉर्म ऑफ कॉशी-आइलर. So I will just give you a note. Yes बेटा. बेटा z है ना यहाँ पे, है ना? मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन की है ऊपर? e raised to power x is equal to e raised to power z. It means log of x is equal to z. है ना बेटा? तो यहाँ पे मैंने z की जगह पे log x लिखा है और e raised to power z की जगह पे x लिखा है, वो x square बन गया. Clear? So we have substituted z in terms of x. Okay, so note, if you have this equation a naught ax plus b square d2y by dx2 plus a1 ax plus b
dy by dx प्लस a2y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह पे ये है ना, वहां पे एक्स स्क्वायर था वाई डबल डैश के साथ कॉशी आइलर में, ये भी कॉशी आइलर ही है, दिस इज ऑल्सो कॉशी आइलर। इसमें क्या है, एक्स की जगह पे यू हैव समथिंग लाइक 2x माइनस 1 या फिर 3x प्लस 2 या माइनस 3x प्लस 2। a and b are constants. In this case, can you tell me what we should substitute? Yeah, here you will do ax plus b is equal to e raised to power z. Fine. और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास क्या आएगा, you will get ax plus b into dy by dx will be equal to dy by dz and into ab आएगा एक। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। एंड ax plus b स्क्वायर, या वैसे ही डिराइव कर सकते हो जैसे मैंने अभी कराया आपको, दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर इंटू d2y by dz2 माइनस dy by dz। इसमें बच्चे गलती करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो a और a स्क्वायर नहीं लगाते, तो आप डिराइव करोगे ना a एंड a स्क्वायर आएंगे। इज दैट ओके बेटा? सो इसका क्वेश्चन मैं आपको एक दे देती हूं, बट आप अपने आप करोगे। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर y डबल डैश प्लस 2x प्लस 1 y डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। ओके, इसको करना सब लोग। नेक्स्ट क्लास में मुझे आंसर बताना प्लीज, सब लोग करके आना। किसी को डाउट यहां तक? चले आगे। अच्छा, बता सकते हो हमारा ओरिजिनल एम क्या था? नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करना। अभी तक हम किसको सॉल्व कर रहे हैं? होमोजीनियस को। ठीक है, होमोजीनियस के लिए हमारे 3 मेथड हो गए। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, 3 मेथड मतलब 3 काइंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से सारे हो जाते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी ना पी क्यू पे, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में। और दूसरा आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला, उसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट होना चाहिए। और तीसरा आपका कॉशी आइलर, उसकी 2 तरह के हो गए। क्लियर बेटा? सो अभी हम फिर हमें, मैंने आपको स्टार्टिंग में रिजल्ट बताया था कि नॉन होमोजीनियस का जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस। अभी हमने जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस निकालना सीख लिया। नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड आउट पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस। ओके, सो लेट मी राइट डाउन। सो नेक्स्ट टास्क इज, व्हाट इज नेक्स्ट, कि हमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालना है। दिस इज इक्वल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन, राइट? वाई जी इसको बोलते हैं, इसको हम वाई बोलते हैं। ठीक है, प्लस पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम वाई पी बोलते हैं। इसको हमने सीखने 3 वेज हमने कर लिए। इसके लिए वी हैव 2 मेथड्स, देयर आर सो मेनी मेथड्स, बट आपके सिलेबस में वी विल डिस्कस 2 मेथड्स टू फाइंड आउट पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो द फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में MOUC। एंड देन सेकेंड मेथड इज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ओके बेटा, सो दीज आर द 2 मेथड्स लेफ्ट फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। सो वी विल बी डिस्कसिंग मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स एंड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। दीज मेथड्स आर फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फिर आपको पूरी भी सॉल्व करनी आ जाएगी। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजेनियस का जनरल सोल्यूशन निकालना हो तो होमोजेनियस का जनरल सोल्यूशन निकाल लो और उसका पर्टिकुलर निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। इज दैट थिंग ओके बेटा? इसके 3 वेज में आपका रिडक्शन ऑफ ऑर्डर आता है और कांस्टेंट कोएफिशिएंट और कॉशी आइलर।
सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स. इसमें आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर इसी में जाएगा, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स. सो लेट अस डिस्कस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स. Shall I start? Okay. So method of undetermined coefficients. Okay, ये short form लिख दूँ ना. देखिए बेटा, I will give you an example. Suppose you have this differential equation y double dash plus py dash plus qy is equal to okay, so one thing, it will work when p and q are constants. Okay, write down. It will work when p and q are constants. मतलब functions of x नहीं होने चाहिए. Fine. Now because we are talking of non-homogeneous differential equation, right hand side पे भी कुछ होगा, ठीक है? So वो x का function होगा, rx. So method of undetermined coefficients में p and q has to be constants and r is a function of x. Clear बेटा? So first case, इसमें r कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि कैसे आप सॉल्व करोगे. So first case, case 1, if rx is equal to something like k e raised to power ax. राइट हैंड साइड मेरी ऐसी है मान लो. अब देखिए बेटा, इसमें मुझे क्या ढूंढना है, इसका सॉल्यूशन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू के ई रेस्ट पावर ax. इसका सॉल्यूशन ढूंढना है एक. तो कैन यू टेल मी मुझे कैसा सॉल्यूशन ढूंढेगा, y कैसा होगा? e की पावर ax होगी फॉर श्योर, क्योंकि p एंड q कॉन्स्टेंट्स हैं. तो इसमें यू आर क्लियर दैट योर yp will look like something into e raised power ax and that something you have to find out. Everybody is convinced why your solution will look like this? क्योंकि there is no other choice. आप क्या चाहते हो कि ऐसा y जिसका डबल डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट मल्टीपल टाइम सिंगल डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट मल्टीपल टाइम्स दैट फंक्शन इज इक्वल टू k e raised power ax. ये तभी पॉसिबल है जब y जो है वो a into e raised power ax है, where this a has to be determined. Is that okay? That is why this is called method of undetermined coefficients. a हम find करेंगे. a कैसे find करेंगे? How we will find a? We will force this function to satisfy this equation, है ना? We will force this function to satisfy this equation. वहां से a आ जाएगा. Is that okay? So method of undetermined coefficient में rx क्या है उसके बिहाफ पे आप अपना yp चूज करोगे. उसमें कुछ undetermined coefficients होंगे, उनको आप कंप्यूट करोगे by forcing that particular function to satisfy your equation. Is that thing clear? Everybody is convinced that whenever right hand side is some constant into e raised power ax, you will choose yp as some constant into e raised power ax. And that a you will, capital A you will compute. Clear? So let us do one problem. इसमें ना एक चीज और लिखूंगी, पहले मैं क्वेश्चन कर दूं उसके बाद लिखूंगी एक और चीज नोट. सो क्वेश्चन कीजिए एक. जस्ट अ मिनट. ओके, y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 3 ई रेस्ट पावर 3x. करो बेटा, सॉल्व दिस. अब आपकी नॉन होमोजेनियस आ गई. क्वेश्चन क्या है कि इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले बताइए बेटा. यू विल राइट दैट सोल्यूशन इज इक्वल टू yg प्लस yp, वेयर yg इज जनरल सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस 4y इक्वल टू 0. ये क्लियर है ना बेटा? सो ये आपको सोल्यूशन निकालना आता है इसका. m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दैट गिव्स यू m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. सो yg क्या हो गया आपका? c1 e रेस्ट पावर 2x प्लस c2 e रेस्ट पावर माइनस 2x
क्लियर है ना बेटा? दिस इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस. y double dash minus 4y is equal to 3 e raised to power 3x. So solution will be yg plus yp, where yg is the solution of homogeneous. Homogeneous मतलब राइट हैंड साइड पे 0 लिख दो, तो उसका सॉल्यूशन अब आपको निकालना आता है. yg सबको क्लियर है? अब yp निकालें. यहां तक लिख लीजिए. For yp assume a e raised to power 3x by method of undetermined coefficients. किसी को डाउट है बेटा इसमें? प्लीज आस्क. लास्ट डेस्क समझ आ रहा है बेटा आपको? एनीबडी हैविंग डाउट प्लीज आस्क. सो ऐसा एज्यूम कर लोगे. अब आप इसको make this function satisfy your equation. So now you have yp double derivative minus 4yp should be equal to 3 e raised to power 3x, है ना? So यहाँ पे पुट करो. डबल डेरिवेटिव क्या आएगा बताइए इसका? 9a e raised to power 3x minus 4a e raised to power 3x is equal to 3 e raised to power 3x. तो यहां से क्या आएगा? 5a is equal to 3. So a की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5. Therefore yp is 3/5 e raised to power 3x. Therefore your solution is c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power minus 2x plus 3/5 e raised to power 3x. क्लियर बेटा? सो पूरा जो हमने थ्योरी यूज की सीखी अभी तक सब लग गई आपकी. पहले आपको होमोजीनियस सॉल्व करना है, ठीक है? फिर नॉन होमोजीनियस के लिए मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मैंने बताया है. ओके, सिंपल कैलकुलेशंस है, यू कैन डू. इसमें एक दिक्कत है, कोई बता सकता है? इस चीज में जो मैंने की है एक दिक्कत हो सकती है. अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाए, ए निकले ही ना आपका, है ना? ये भी तो हो सकता है. देखो, ओके, लेट अस डू दिस प्रॉब्लम. y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2x. इस केस में क्या है? इस केस में आपका जो ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व दिस इक्वेशन. इस केस में आपकी जो y इज इक्वल टू वाई जी प्लस वाई पी है, उसमें आपका जो yg निकालोगे आप, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो ये है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. ये जो 2 है वो इसका भी रूट है, मतलब ऑलरेडी वो e रेज़ पावर 2x इसका सॉल्यूशन है इक्वल टू 0 का, है ना? हम कैसा y चाहते हैं? सच दैट उसका डबल डेरिवेटिव और वो मिलके e रेज़ पावर 2x बनाए. अब हमारे पास ये हो रहा है कि 2 इसका भी रूट है, इसका मतलब 2 इक्वल टू 0 वाले का सॉल्यूशन है e रेज़ पावर 2x, ना? कैन यू सी दैट बेटा? सो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे अज्यूम करेंगे बताओ? यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो है c1 e रेज़ पावर 2x प्लस c2 e रेज़ पावर माइनस 2x, इसका मतलब e रेज़ पावर 2x जो है वो होमोजेनियस का सॉल्यूशन है. y डबल डैश माइनस 4y इक्वल टू 0. सो अगर आप ऐसा सॉल्यूशन एज्यूम करोगे, वो तो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना देगा ना, है ना? और हमें क्या चाहिए कि e रेज़ पावर 2x आना चाहिए. तो कैसा सॉल्यूशन एज्यूम करूं? x से मल्टीप्लाई कर दो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो? ओके, लास्ट क्वेश्चन तक क्लियर है? नहीं, यहां तक क्लियर है? हाँ, ओके, चलो लेट अस डू अगेन. इसको भूल जाओ, दोबारा करा. आपके पास ये है क्वेश्चन, y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2x, ना? क्लियर? मुझे इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है. मैंने क्या किया? y इज इक्वल टू
वाई जी प्लस वाई पी। फाइन, वाई जी क्या है, होमोजीनियस का सोल्यूशन। सो वाई जी निकालने के लिए मैंने क्या किया, वाई डबल डैश माइनस 4y इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, मेरे पास क्या आ गया, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो मेरा वाई जी जो आ गया वो क्या आ गया, c1 e रेज़ पावर 2x प्लस c2 e रेज़ पावर माइनस 2x। यहां तक क्लियर है बेटा, ये तो सेम है। अब देखिए मुझे वाईपी निकालना है। वाईपी क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जो ये है ना वाईपी, वाईपी ऐसा होना चाहिए बेटा। अब मैंने अगर वाईपी ये चूज कर लिया a e रेज़ पावर 2x तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, a निकलेगा, a कंप्यूट कर पाओगे, 0 हो जाएगी ना लेफ्ट हैंड साइड। क्यों 0 हो रही है, क्योंकि जो आपकी राइट हैंड साइड है यहाँ पे इक्वेशन में जो ये वाला फंक्शन है वो ऑलरेडी सोल्यूशन है होमोजीनियस का, है ना। तो अगर आपने ये वाला चीज एज्यूम करी कि मेरा वाईपी ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता वाईपी। हाँ जी, हाँ आरएचएस तो फिक्स है ना। दिस कैन नॉट बी द सोल्यूशन, कैन यू सी, क्यों, क्योंकि इसने तो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बनाना है, तो दिस कैन नॉट बी अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब समझ में आ रहा है सबको। तो अब मैं क्या करूं, अगर आप ऐसा सोल्यूशन एज्यूम करोगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि एक एक्स ऐड कर दिया हमने डेरिवेटिव से, वो आपका यूज हो जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर बेटा। तो वेन एवर आई विल राइट डाउन, सो वेन एवर मैंने ऊपर बोला था ना कुछ मिसिंग है, मैं दोबारा लिखूंगी। यहां पे लिखिए आप अपना कि इफ दिस ए इज अ रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन देन एज्यूम yp इज इक्वल टू ax e रेज़ पावर ax। मतलब फाइनली तो आपने याद ही रखना है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि क्यों आया वो। एंड हो सकता है 2 बार रूट हो, इफ a इज डबल रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन देन एज्यूम yp इज इक्वल टू ax स्क्वायर e रेज़ पावर ax। समझ आया बेटा, जो आपका क्या है, अभी हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं किस केस में, जब आपकी राइट हैंड साइड क्या है, e रेज़ पावर ax, स्मॉल ax। So if small a is not a root of auxiliary equation, तो आप yp कैसे assume करोगे, a constant into e raised power ax। If small a is single root of auxiliary equation, तो आप अपना yp कैसे assume करोगे, x into e raised power x into a constant। समझ आया क्यों, क्यों क्लियर है ये, क्यों एक्सप्लेन कर रही थी मैं आपको, a 0 हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज a 0 नहीं और a निकलेगा ही नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी ना। और अगर आपका क्या करें बेटा, ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात कैसे आएगी, वही तो बता रही ना बेटा, यहाँ देखिए ना, लिख लो पहले इसको। देखो बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात तभी आएगी ना, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ऑक्सिलरी का रूट 2 था, है ना, तभी तो e रेज़ पावर 2x होमोजेनियस का सॉल्यूशन बना। तो इसका मतलब ये वाला a जो है, दिस वाज योर a, दिस वाज योर a, दैट इज आल्सो रूट ऑफ ऑक्सिलरी। उस केस में आप अगर e रेज़ पावर 2x इनटू अ कांस्टेंट लगाओगे, दैट कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन। उस केस में आपको एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट ओके बेटा, या श्योर, आपका क्लियर पॉइंट बेटा, सबको समझ में आया, आई कैन एक्सप्लेन अगेन अगर नहीं समझ में आया, आ गया ओके। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, ओके ओके, दिस वन ओके, राइट डाउन। बस आपको अब ये याद रखना है कि e रेज़ पावर ax अगर राइट हैंड साइड है तो 3 केस हो सकते हैं, या तो सोल्यूशन a e रेज़ पावर 2x अज्यूम करोगे, ax अज्यूम करोगे, या फिर एक x से मल्टीप्लाई करोगे, या फिर एक x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, क्लियर। फिर a निकालना, अभी बताते हैं। डबल रूट मतलब 2 बार आ रहा है, जैसे अगर मान लो हमारा 2 2 आ जाता रूट, उसमें अगर x भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसने भी नहीं देना a, ठीक है। हाँ तो अभी बता रही हूँ मैंने एक क्वेश्चन करा दिया जिसमें आपका रूट नहीं था a, अभी मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगी जिसमें रूट बनते हैं, ठीक। Shall we do the question? ये वाला आपने बस, ये भी तो सिंपल मैंने करा ही दिया जिसमें सिंगल रूट आ रहा है,
2 इज अ रूट, तो आप सोल्यूशन कैसा अज्यूम करोगे, ऐसा। क्लियर बेटा, सब अपने आप निकाल लेंगे ए की वैल्यू, इसको अपनी इक्वेशन में पुट करना इसमें और ए कंप्यूट कर लेना, ठीक है बेटा। और अगर ये है क्वेश्चन, कैन यू डू बेटा, इसको पूरा करते हैं हम। चलो यहाँ पे देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, सबसे पहले पूरा लिख लियो, यहाँ पे लिख लेना y इज इक्वल टू वाई जी प्लस वाई पी, और वाई जी निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं, सो दैट इज एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, सो दैट इज m माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, सो m क्या आ गया आपका 1,1 है ना, सो वाई जी क्या होगा, कैन यू टेल मी एनीबडी, प्लस C1 प्लस C2x ई रेस्ट पावर x। अब यहाँ पे देख रहे हो राइट हैंड साइड क्या है, ई रेस्ट पावर 1x, और 1 कितनी बार रूट आ रहा है, 2 बार, तो ये देखो x इंटू ई रेस्ट पावर x भी ऑलरेडी आ चुका ना, यहाँ पे 1 इज अ डबल रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, डबल रूट मतलब 2 बार रूट है ऑक्सिलरी इक्वेशन का, सो आप yp कैसे अज्यूम करोगे, बताइए बेटा, यस ए एक्स स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स। क्लियर है बेटा जी सबको, यहाँ पे देखिए ना x इंटू ई रेस्ट पावर एक्स ऑलरेडी होमोजेनियस का रूट है, सॉल्यूशन है, तो अगर आप ए एक्स ई रेस्ट पावर एक्स एज्यूम करोगे तो इट कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस, सेम कॉन्सेप्ट। नाउ यू कैन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ a बाय पुटिंग इट इन द इक्वेशन, कर लोगे सब लोग, ए आएगा आपका इस केस में, आई विल टेल यू, ए 3 आएगा, ठीक है, कंप्यूट ए 3 आएगा, ओके। क्लियर है सबको, लेट मी क्विकली राइट वन एग्जाम्पल जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा, y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू ई रेज़ पावर 5x, y डबल डैश माइनस 4y is equal to e raised power 2x and y double dash minus 4y plus 4y dash plus 4y is equal to e raised power 2x। देखो ये 3 केस लिखे हुए हैं मैंने, पहले केस में yp क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो, yg तो आप निकाल ही लोगे, अब इसमें a क्या है 5, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या है, तो आप yp क्या एज्यूम करोगे, a e रेज़ पावर 5x। क्लियर बेटा, इस केस में a क्या है 2, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या है 2 माइनस 2, तो क्या एज्यूम करोगे yp, 5x नहीं 2x, ठीक है, क्योंकि एक ही बार रूट आ रहा है ना 2। अब इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0, m माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2,2, तो क्या एज्यूम करोगे, आ गया सबको समझ, ठीक है बेटा, yg वैसे ही निकालना है, yp अगर, और यू शुड आल्सो नो कि ऐसा कर क्यों रहे हैं, इस केस में क्यों x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, e raised power 5x is the solution of homogeneous in this case, sorry in this case a e raised power 2x is the solution of homogeneous, so it cannot be a solution of non homogeneous, इसलिए हमने x से मल्टीप्लाई किया। इस केस में क्या है, a e raised power 2x is the solution of homogeneous, a x e raised power 2x is also solution of homogeneous, so it cannot be a solution of non homogeneous, so अजय सॉरी बेटा उसे आपने लास्ट इंडेक्स मारे ना तो दोबारा बोलो, हां देखिए इस केस में आपके m2, 2 आ गया ना बेटा, तो होमोजेनियस का सॉल्यूशन क्या होगा c1 c2x e raised power 2x, है ना, तो इस केस में e raised power 2x is the solution of homogeneous, it cannot be a solution of non homogeneous, है ना, x e raised power 2x is also a solution of homogeneous, so it cannot be a solution of non homogeneous, so that is why you will assume this, ठीक है, क्लियर है सबको, देख लो एक बार,
2 minutes I am giving. मैं बोलती ऐसा हो सकता है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता ना बेटा, होमोजेनियस मतलब लेफ्ट हैंड साइड जीरो बनेगी, नॉन होमोजेनियस मतलब अपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बनाना है, एक सोल्यूशन थोड़ी हो सकता है। नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस का सेम थोड़ी होगा कभी भी, जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो तो हो ही सकता है, ठीक है, अगर जीरो है तो फिर राइट हैंड साइड भी जीरो है, वो तो फिर कोई सेंस नहीं, जीरो अगर आप ले रहे हो, अगर जीरो को फंक्शन अज्यूम कर रहे हो, फिर तो आप, ये क्लियर है बेटा सबको? तो ऐसे हमने जैसे आज e⁻ax लिया है, ऐसे हमने 2-3 और फंक्शन लेने हैं, साइन कॉस होगा तब क्या करना है, पॉलिनोमियल होगा तब क्या करना है, बट प्लीज इसके क्वेश्चंस करके आना बेटा, सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कैन फिनिश दिस थिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा जो करा रहे हैं, ठीक है, सब बेटा देखो क्वेश्चंस तो आप ट्यूटोरियल ही कर लो ना, अभी जो मैं कह रही हूँ ना कि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिर्फ ट्यूटोरियल करके आ लो, ट्यूटोरियल शीट इसको भी बुक करिए, बुक से करना है बेटा, मैं क्वेश्चंस बाद में आपसे शेयर कर लूंगी, केवल एक्सरसाइज में शेयर कर दूंगी, चलो आज ही मैं व्हाट्सएप कर दूंगी जितना हमने किया है चैप्टर 5 ना, चैप्टर 4 तो ऑलरेडी आई हैव शेयर, ठीक है बेटा, हाँ वही करना है बेटा, वो मोर देन सफिशिएंट है, मेरे नोट्स, ट्यूटोरियल शीट्स एंड व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा।